on to our next event. जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं. जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं. बस एक बार चलने का हौसला रखिए. बस एक बार चलने का हौसला रखिए. अच्छे इंसान का तो रास्ता भी इंतज़ार करता है. अच्छे इंसान का तो रास्ता भी इंतज़ार करता है. I deem it a great privilege and immensely pleased to invite Colonel Sharanappa Sikanpure sir, son of this soil, a man of visionary who inspires young generation to join armed forces. This event was not possible to organize without his support. Colonel Sharanappa Sikanpure sir will render welcome address. I would like to present a short video clip of his introduction. Can we have the video clip, please? Colonel Sharan Sikanpur is a native of village Sikanpur in Bidar district. He did his primary schooling from the village government school and high school from government MPHS Bidar. He joined the army in July 1977 at a tender age of 17 and retired as a colonel after 37 years of distinguished and extremely satisfying service in June 2014. He is a graduate from the prestigious Jawaharlal Nehru University, New Delhi, a postgraduate in human rights, MBA in disaster management as well as human resources management. Actively participated in counter-insurgency operations in Jammu and Kashmir in 1995 and 1996 while the militancy was at its peak. His results were the highest in Valley. During the Kargil War 1999, he was posted at Dras Brigade headquarters. He was responsible for intelligence gathering and sound planning of operations. During his tenures in United Nations missions in Africa, he was instrumental in rescuing a Kenyan company in Battle of Makburaka. He also led the fighting breakout during Operation Kukri, launched to rescue 233 Indian soldiers taken hostage by the RUF. He was wounded while clearing a roadblock during the operation. He was awarded a wound medal for this and recommended for a gallantry award. He has been awarded 3 commendation cards by the Chief of Army Staff for his gallantry actions and distinguished services. Prior to coming back to Bidar after retirement, he was in charge of handling intelligence of 3 states, Maharashtra, Gujarat and Goa, while posted at Area Headquarters, Mumbai. He is blessed with 2 sons and both of them are well settled in US. Due to his passion for education, he returned to Bidar and set up Global Sainik Academy in 2015. It has now 3 branches. He is on a mission to transform Bidar region into a better place to live in. With his noble vision and firm resolve, the region has started getting benefited immensely. Ladies and gentlemen, please welcome Colonel Sharanappa Sikanpure sir. Thank you very much. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಜನರಲ್ ರಮೇಶ್ ಹಲ್ಗಲಿಯವರೇ, ಏರ್ ಕಮಡೋರ್ ಹಿರೇಮಠ ಅವರೇ, ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೋರ್ಸ್ಮೇಟ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಮಾಂಡರ್ ನವನೀತ್ ಬಾಲಿ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಲ್ ರೋಹಿತ್ ದೇವ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಸೋದರ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನವೀನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಅವರೇ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ
Mr. Richard Vincent Aure, Deputy Commissioner Bidar Sri Ramchandra Aure, CO Bidar Sri Gangwar Aure, SP Bidar Agirtakanta Sri Nagesh Aure, Rotary past President District Governor KC Senan Aure, Rotary AG Kalyan Zone Sri Jagdish Patil Aure, Rotary Club New Century President Sri Suryakant Aure, Secretary Kapil Aure, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ಮೆನ್ ವೆಟ್ರನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ MV ಪಾಟೀಲ್, कर्नल धालीवाल, कर्नल GK सिंह, कर्नल दीपक चोपड़ा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजेश चलवा, कैप्टन सतीश बिरादार ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೇಜರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಮೆಡಲ್, NCC Associate Officers Mr. Major Vittal Reddy, Flight Lieutenant Anup Elia, Chief Officer Muhammad Rafi, dear NCC cadets and future leaders, fellow Rotarians, armed forces aspirants, friends and well-wishers, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಸುಸ್ವಾಗತ. सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगूंगा क्योंकि कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ प्रोग्राम शुरू होने में. मुझे इसका बहुत बहुत खेद है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ. सेमिनार का उद्देश्य ये आज जो हम आयोजित कर रहे हैं, इसका आर्म्ड फोर्सेस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है बीदर के लोगों में एक सैन्य के बारे में जानकारी लाना, यहाँ के लोगों को सैन्य के बारे में हम बताना चाहते हैं कि आखिर सेना में होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी जागरूकता लाना, भारतीय सेना के प्रति गौरव पैदा करना, देश प्रेम की भावना को जगाना, बीदर डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा बच्चों को हम आर्म्ड फोर्सेस में भेजना, ये मुख्य उद्देश्य था. इसकी वजह यह है क्योंकि हम लोगों का माइंडसेट बना हुआ है. पिछले 45 साल पहले मैं पढ़ता था यहाँ पर, जब लोगों से बात करते थे तो डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, आज भी यही है. जबकि फौज बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है एंड इतना स्कोप है, बहुत लोगों को एक तो रोज़गार मिल सकता है और अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है. वहाँ का एक्सपोजर इतना ज़बरदस्त है, आने के बाद वो समाज के लिए, अपने फैमिली के लिए, इस प्रदेश के लिए काफ़ी कुछ किया जा सकता है. और ये यहाँ पर मालूमात नहीं होने की वजह से बहुत से कम है. जवान फिर भी ज़्यादा हैं लेकिन ऑफिसर्स रैंक में बहुत कम है. टोटल 15 वेटरन्स हैं यहाँ के और सर्विंग ऑफिसर्स 26 हैं. इसमें 19 डॉक्टर्स हैं, जो फाइटिंग आर्म्स में बिल्कुल कम ऑफिसर्स हैं. ESMs करीब 1700 हैं यहाँ पर, जो कि अदर रैंक्स में हैं, JCOs एंड OR. जब मैंने थोड़ी कंपैरिजन करने की कोशिश की और देखा कि कोडगु हमसे 1/3 है, 5.5 लाख पॉपुलेशन, और वहाँ से 50 जनरल्स तैयार किए उन्होंने, एक फील्ड मार्शल भी है, मतलब 2 फुल फ्लेज्ड जनरल और एक फील्ड मार्शल. इसके अलावा बाकी लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल्स, इतने सारे हैं. जो कि हमें दुख की बात है कि यहाँ से ऊंचे स्तर पर कोई ऑफिसर्स नहीं गए हैं अभी तक. इसलिए हम सोच रहे थे कि कुछ ऐसा करते हैं. तो मेरा वापस आने का मकसद यही था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ौज के बारे में बताऊं और उनको प्रेरित करूं कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री में जाएं और एक अच्छी ज़िंदगी बिताएं. 26 सितंबर को जब एक फंक्शन किया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, जहां पर सिविल ओरिएंटेशन प्रोग्राम, उस वक्त मैं जब यहाँ बैठा था तो रोटरी के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी मेरे पास आए. सर, एक ऐसा प्रोग्राम हम भी क्यों ना करें.
मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों में फौज के प्रति प्यार बढ़ रहा है। तो मैंने कहा अभी तो कोविड है, मुझे कुछ जाना था जल्दी। मैंने उनसे कहा मैं जा कर के बात करता हूँ। आई वॉज लिटिल हेजिटेंट। मैंने कहा इस वक्त फौज काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं लोग और आने के लिए मना भी करते हैं। तो मैंने सबसे पहले जनरल हलगली साहब को फ़ोन लगाया, मैं उनको जानता था। तो मैंने कहा सर ऐसा विचार है, हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारा एक ही सपना है कि बीदर प्रदेश, जो लोग बैकवर्ड कहते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि हमें कोई बैकवर्ड कहें। हम इस प्रदेश को जितना ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो हम लेकर जाना चाहते हैं, आप आना होगा और इस फंक्शन के लिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं अभी वो थिंक टैंक में हूँ एंड मुझे बाहर देशों में जाना है, रशिया जाना है, फ्रांस जाना है, फिर यूएस भी जाना है, यूक्रेन, यूगोस्लाविया, इनका कुछ ऐसा प्रोग्राम था। तुम फरवरी में करो तो मैं आऊँगा। तो मैंने कहा ये तो ऑलमोस्ट दिसंबर 1 या 2 वीक में फिक्स हुआ था। तो मैंने कहा चलो तुक्का मारते हैं। तो मैंने एक चिट्ठी लिख डाली इनको, कुछ भी करो, अगर कोई चमत्कार हो जाता है तो आ जाए। तो मैंने जैसे चिट्ठी लिखा 2-3 घंटे के बाद ही मुझे उनका जवाब आया। तो कैन वी रीड दैट रिप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम जनरल हलगली पृथ्वी? Okay. I am extremely delighted to read your visionary thought in motivating young and impressionable minds for serving our country through the armed forces. It would be my honor and privilege to join you all on this momentous occasion and contribute seemingly towards the emancipation of future leaders of modern India. You have my best wishes in all your endeavors. God bless you. Warm regards. Lieutenant General Halagali, veteran. एक बड़ा व्यक्ति अगर मिल जाए, बाकी सब जुड़ जाते हैं, तो मैंने एकदम तसल्ली हो गई मुझे। और मैंने डीसी साहब से जब हम मिलने गए थे और बताने गए थे तो वो भी काफ़ी खुश हो गए और उनका इतना सपोर्ट हमको उन्होंने जताया कि बहुत बढ़िया है, आप इसको करो और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए की तरफ से जो भी कुछ मदद हम लोग कर सकते हैं तो करेंगे। उन्होंने रंग मंदिर फ्री में बुक कर लो, गेस्ट रूम्स फ्री में ले लो, गाड़ियाँ भी देता हूँ। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द डिप्टी कमिश्नर। ही वॉज सो मैग्नानिमस and we appreciate his gesture and the support that he has given to us. उसके बाद मैंने बाकी स्पीकर से अप्रोच किया। तो मैंने उसके बाद एयर कमोडोर हिरेमठ जो बेलगाम में रहते हैं उनसे कहा, तो उनसे मैं कांटेक्ट में था पिछले 5 साल से, तो उन्होंने भी हाँ कह दिया। कर्नल रोहित देव, मीडिया पर्सन से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, अर्णव गोस्वामी, इस तरह के टाइम्स नाउ, दूसरा कई टीवी चैनल्स पर आते हैं। और उनसे मैंने बात की क्योंकि वो अफ्रीका में मेरे साथ थे जब हम लोग यूनाइटेड नेशंस मिशंस में थे, तो उस वक्त से हमारी दोस्ती है। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने भी अगर आपने बुलाया तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो ये कहा, कैप्टन नवीन नागप्पा, सेना मेडल, कारगिल वॉर हीरो, जिनको मैंने बेंगलुरु में मिला था, अशोक चक्र संदीप उन्नीकृष्णन के बर्थडे पर मुझे भी बुलाया गया था, वहाँ पर हम मिले थे और उन्होंने सर मैं भी आऊँगा। तो इस तरह से मैंने ये स्पीकर्स को बात करके उनको मनवाया और उसके बाद आज आपके समक्ष हैं। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए देकर कि बीदर के लिए कुछ करने को, वो भी इसमें भागीदारी है। मैं कई चीज़ें हैं मेरे पास, तो मैं स्पीकर्स को तो ग्रेटफुल हुई हूँ और मैं बताना चाहता हूँ लोगों की कि आर्म फोर्स में क्यों जाना चाहिए। मैंने तो कहा कि सबसे बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है
और एक ही ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में है जो आपको जल्दी उठा करके आपका हेल्थ का देखभाल करके, पीटी करा करके, गेम करा करके, अच्छा खाना खिला करके, आपको तंदुरुस्त रख करके आपको अच्छी तनख्वाह देती है। अगर एक जिस्ट में बताऊं इसके बारे में, और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन शायद दुनिया में कोई नहीं है। आपको कुछ हो गया, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिक्र करने की, तो वहाँ पर मेडिकल के लोग तैयार हैं आपको बचाने के लिए। अगर मान लो आपके घरवाली को कुछ हो गया, या आपके माँ बाप को कुछ हो गया, या आपके परिवार में बच्चों को कुछ हो गया, तो सब कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री है। दूसरा, 4% है जो मेल रिक्रूटेबल पॉपुलेशन कर्नाटक का। अनफॉर्चुनेटली ये हम वैकेंसी सरेंडर करते जाते हैं। मैं जवानों की बात कर रहा हूँ। ये वैकेंसी सरेंडर इसलिए करते हैं क्योंकि फुलफिल, एक कर्नाटका है, एक गुजरात है, एक उड़ीसा है, ये 3-4 स्टेट्स हैं जहाँ से लोग शायद कम भर्ती होना चाहते हैं। वहीं पे बेलगाम है, वहीं पे हमारे पास और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोडगु है, फुल वैकेंसीज यूटिलाइज होती हैं, बट बाकी जगह पर अभी भी काफ़ी स्कोप है। हम ट्रांसफ़र करते रहते हैं वैकेंसीज महाराष्ट्र और नेबरिंग बाकी किसी भी स्टेट को ज़्यादा है। विलेज बहुत अच्छा है, हमारे टाइम अच्छी नहीं, बट नाउ द सैलरी इज़ ऑल्सो वेरी गुड, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बढ़िया है, और आपको एक्सपोजर जो मिलेगा, आप वो एक्सपोजर को यहाँ ला करके यहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन टाइम चाहिए। अगर डिसिप्लिन है तो उसका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो एक फौज में जाने के बाद, तभी तो इजराइल वगैरह कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, इवन यूएस, तो जहाँ पर अगर कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग की बात यहाँ पर भी चल रही है। शायद जनरल साहब हमारे इसके ऊपर ज़्यादा लाइट डालेंगे। तो अगर जिस दिन अभी कम वैकेंसीज ट्रायल बेसिस पर चल रहा है, तो हो सकता है उस वक्त हमारा देश और तेज़ी के साथ तरक्की कर सकता है, ये हमारा मानना है। तो हमारा एक विज़न है कि साल में हम 10 ऑफिसर्स बनाएं, और ये नामुमकिन नहीं है। अगर मेहनत करें तो साल में अगर 10 ऑफिसर्स, क्योंकि कई सारे एनडीए हैं, टेक्निकल एंट्री स्कीम है, सीडीएस है, फिर एयरफोर्स का कैट है, उसके बाद नेवी का अलग से है, इतनी सारी जो एंट्रीज़ हैं, और एक एक भी अगर एमएनएस है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, यहाँ का कोई भी नहीं है। तो मैंने अभी 2-3 बच्चों को मोटिवेट करके अभी फॉर्म भरवाया, तो देखते हैं इसका। और 100 से 200 सोल्जर पर साल आराम से फौज में जा सकते हैं बीदर से। तो इतने लोगों को अगर हम रोज़गार दे रहे हैं, अगर अगले 10 साल अगर इस तरह से हम काम करते जाएं और इसमें रिस्पांस अगर अच्छा होगा, तो मुझे यकीन है कि बीदर ट्रांसफॉर्म होना ये नामुमकिन नहीं है। तो इसके बाद पोस्ट सेमिनार के लिए डीसी साहब ने भी कहा, यहीं तक मत छोड़ो, और इट हैज़ टू बी टेकन टू अ लॉजिकल कंक्लूजन। It is just a precursor, and we need to take it to a logical conclusion and create awareness constantly. Training infrastructure already है GSA में, और भी हम जो रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ वगैरह करना है, और 1 जनवरी से हम ट्रेनिंग शुरू करना चाहते हैं, और वो लगातार रहेंगे वहीं पे खाएंगे पिएंगे, ट्रेनिंग करेंगे। जहाँ जहाँ भर्ती होगा हमारा एक सेल खुलेगा, और उनको जानकारी देते जाएंगे, और जब तक भर्ती नहीं होते हैं तब तक हम उनको छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ के लोगों को इवन 2000-2500 जो खर्चा आता खाने पीने पर, वो भी कष्ट है। उसके लिए हमारे रोटरी भाई वो आगे आने को तैयार हैं। किस तरह से फ़ंड जनरेट करेंगे उसके बारे में मुझे बड़ी खुशी है कि मैं सोच रहा था कि हमारे बच्चे 12th में जाने के बाद, बट हम लोग शुरू करें। तो ये सब हेल्पलाइन होगा यहाँ पर, एक कभी भी कुछ भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में हासिल कर सकते हैं। तो अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जो सेमिनार है एक शुरुआत है, इसका भरपूर फ़ायदा यहाँ के लोगों को नहीं, जो ऑडिटोरियम में हैं, जो बाहर फेसबुक पर अभी लाइव हमको देख रहे हैं, या ये पूरा जो सेमिनार ख़त्म हो जाएगा इसके बारे में जो जानकारी मिलेगी, उससे इस प्रदेश को लाभ पहुंचेगा। और मैं once again I am very very grateful to all the speakers and the district administration and Rotarians for having spared their time and putting their efforts make this function
a grand success. Thank you very much. धन्यवाद. जय हिंद.